संदीप एंड गोलू and there are some demos of the regular corporate or the function of animates this video is spread to and this is the spark type system cleaner to the end of this image check items and this is the battery charger in the end of the image check whatever it is. Section is after test circuit guidance move the bearing the crank and this is the grinding machine and this is the SI एक DS पर गाड़ी भी है ना वो नीचे और क्या बता रहा इसलिए आ गई है इतने सारे लोग मेरे सामने भी खड़े हो जाए तो आदमी सोचने पड़ जाता है नेट कनेक्ट करना सारे लोग चले गए नेट कनेक्ट क्या किया इनकी हद से ज़्यादा की और बाकी हमारे दो और हैं जो ट्रांसलेट करते हैं पूना वाले क्या है कलर एलिस और सातों लैंग्वेज में तेलुगु ये वो सब ट्रांसलेट करा के 8 लैंग्वेज का 8 लैंग्वेज आने वाला है तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है और देखो एक रियल गीता जागता एक रूप है टेक्नोलॉजी का फुल स्क्रीन कर कुछ मॉडलों के अलावा जिनका शेड्यूल अलग है प्रत्येक सर्विस में वैल्व क्लिप क्लियरेंस की जांच और आवश्यकता को दूर से एडजस्ट किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि यह कार्य तब किया जाए जब इंजन का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। स्पार्क प्लग से हम स्पूल्स को भी दिखाएंगे और फिर जस्ट लाइक आवर वर्कशॉप ट्रांसपेरेंसी बीच में ग्लास होने से वो पूरा एक अटैचमेंट एक कनेक्शन आता है वर्कशॉप ये मनीष आपने देखा बिल्कुल अपना डीलरशिप ही बन गया नहीं बन गया जो घूम के जाना है हाँ सही बात जैसे हमारे जीएलसी वगैरह बीच में से पार्टीशन हटा पीछे चले गए गुड चलो The goal of education is understanding. The goal of training is connections across the India.
experienced faculty members join your hands for a short Saraswati Vandan. And I would invite Vinod Sharma sir, Dr. Vinod Sharma, to please conduct this. That Atithi Devo Bhav. And इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, I would request my team members to please bring forth the bouquet and the memento. And I would humbly request Dr. Ajay Bhushan, Vice Chancellor, Scope Global Skill University, to please present the welcome to Mr. Rakesh Mathur, GL Services, HMCL, Hero Motors Corporate Limited. This is just a token of love and remembrance from our side. Now I would humbly request Dr. D.S. Raghav sir, Pro VC and Director, Scope Group of Institutions, to please present the floral welcome to Mr. Dev Kumar Baswar, DGM Services, Hero Motor Corporate Limited. Now I would request Dr. Anurag Kulshresht to please present floral welcome to Dr. Ajay Bhushan, Vice Chancellor, Scope Global Skill Universities. Also, I request him again to please present welcome to our guest, Mr. Manish sir. Manish is Zonal Service Head, Central Zone. I would request Anurag sir again to please welcome our Pro Vice Chancellor, Scope Global University, Dr. D.S. Raghav sir. Now I would request Dr. Rajkumar Pandey, Dean Academics, to please continue the floral welcome to Mr. Sriram Sasi Kumar, Area Manager Customers. Also, to welcome Pandey sir, I will request again to welcome Mr. Ganesh from ASTC, who has come here today. Yeah. Again, I would request you to please present the welcome to Dr. Satin Khare sir, Principal Sec College. To present floral welcome to Mr. Abhishek Gupta, National Head for Skill Development, ICT. To Dr. Neelam Singh, Principal, Sect B.Ed College of Professional Education. This pleasure occasion where the entire team of Hero Corp is with us. And definitely, because Scope Global Skills University, which we are aware of, and now the team of here is also aware of the first skill university which we are going to open in the heart of India. And we are having a very high expectation from everybody, especially from our team and our industry partners, to
give us more strength, give us knowledge and sharing, so that we can always go further towards the path of success. So here, what is the purpose of Skill University? First of all, I would like to give a small paragraph about that, and then definitely we'll welcome our guests and the team members. See, as far as our country is concerned, as the other countries to the globe, if we talk about, we are having almost 65% to 70% of our population is youth, which is less than 45 years of age. So here, there is a huge demand of the manpower which is in abroad, especially in India also, because if we go in the past, in the long back of our history, तो पहले क्या करते थे हम लोग? एक कारपेंटर होता था, एक पेंटर होता था, वो क्या करता था? वो अपने बच्चे को एक कारपेंट्री सिखाता था. तो जनरली क्या ट्रेंड होता था कि वो कारपेंटर है तो कारपेंटर है, तो उसका बेटा भी कारपेंटर है. अभी उसको रिफाइंड लैंग्वेज में हम लोग अप्रेंटिसशिप बोलते हैं. ऑनेस्टली स्कूलों के अंदर में प्रोग्राम चलाया करते थे, जिसमें एक होम साइंस का प्रोग्राम हुआ करता था, एक SUPW का प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने सिखाते थे, चॉक सिखाते थे, गर्ल्स होम साइंस अडॉप्ट करती थी वगैरह वगैरह. दैट वाज अगेन अ टाइप ऑफ ए स्किलिंग आल्सो. Here the purpose of the university is that once again we are going to touch the roots of our long traditional, coaching. I can say that one. Where other than our traditional coaching, we will provide the skills also to the candidates, which will be benefited to them in future to be an employee and to be a good resource, not over in India, globally also. Because there is a huge requirement. वहाँ पे सब लोग बूढ़े हैं. If we talk about Japan, वहाँ पे कोई youngster है ही नहीं आज के डेट में. Industries are getting closed. So, as the vision of our honorable Prime Minister is there that India should be the largest exporter of manpower in the universe. So we are also looking towards the same. Here, now to start with today, first skill university in the heart of India, Madhya Pradesh, and the first sector which we have nominated with Hero. So I just need a big round of applause. Let me welcome Shri Rakesh Nagpal, who is the General Manager, Hero Motors. Mechanical engineer, and I think so from last 3 decades he is with Hero, if I am not wrong. As per small profile which I can just find out on the LinkedIn also. So, then we have Manish ji with us. Then Jay Kumar Dasgupta ji, who is a DGM Services, and the entire members, especially from the ISET, from the AICT, and our team members, talking about first of all Dr. Raghav, who is not only the Pro VC for SGSU but the director for the Scope group of institutions, where I can say he is one of the iron pillars of Scope. Under his supervision, guidance, today we are going to achieve this first milestone of our university realization. Then my special thanks goes to Anurag ji, Khare Sahab, and the entire team member of Scope, who have given their day and night effort, I can say, to make this happen. So with this, I welcome you all today on this great occasion, where this is going to mark the first milestone in the history of SGSU. So I welcome you all for this great occasion. Thank you so much. Thank you so much, sir. Mr. Abhishek Gupta, for IC group presentation, he is going to tell us about the entire activities of the group. Thank you so much. Thank you for inviting me here and providing this opportunity to share about ISET. So सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी सीनियर्स को, वाइस चांसलर सर, डायरेक्टर सर और हीरो से आए हमारे सभी लीडरशिप टीम, राकेश सर, दिनेश सर, मनीष जी, मोनिका मैडम और पूरी फ्रेटर्निटी ऑफ आईसेट ग्रुप, स्कोप, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, BEd कॉलेज
सभी के फैकल्टी और स्टूडेंट, मैं पेरेंट बॉडी आईसेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई विल शेयर सम प्रेजेंटेशन. So just take a. So can you share the presentations? So I will not take much time. So मैं ISET की जब तक presentation live होता है, I will share some initial how ISET started. So ISET started way back in 1985. So we have a 4 decade of history almost, and the organization started by the founder chairman Sri Santosh Chaubey sir, who has been a merit pass out and selected for civil services. But he has a foresighted to see a vision for India where we can, where he want to bridge the digital divide between urban and rural peoples, and he foresighted that there will be a huge demand for computer and electronic and training and education for across the country. And so we started in 85 ISET, and now we with the 38 year of legacy, ISET is a pan-India organizations. As well as I would say we have started the internationalization of also ISET, and we have a presence in 3 other countries in African region. So I would request you to, if you can appraise the ISET network, and because of your support, ISET is here. So ISET start हुआ था एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में, एंड जैसे जैसे जरूरतें हुई और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगी, जहाँ और बड़ा विजन होता गया, so ISET started the first university in 2006 as a Dr. C.V. University in Glasgow, in 2009 Rabindranath Tagore Universities. Then there are, okay, so the presentation is, yes. So I will take you to the ISET journey of ISET. So how we started. So just starting with the vision. As I told you, the vision was the very simple vision to bridge the digital divide between rural and urban people, and to provide the sustainable employment opportunities across the youth across the country. And the approach has been always the sort of the 3 model. So the previous thing. The education, empowerment, enterprise. So the belief always been that if you provide the quality education, people get empowered and they will create the enterprise which will provide the employment to the youth. And the focus always been the tier 2 market. So always we have got tie-up, we focus the tier 2 market and for skill training, education, placement services. So next. Okay, and if you know the SDG, Sustainable Development Goals, all ISET initiative aligned with the 5 Sustainable Development Goals. So no poverty, quality education, gender equality, decent work and economic growth, and partnership of the goals. These are the Sustainable Development Goals, जहाँ पर UN ने डिजाइन किया है कि 2030 तक हमें 17 Sustainable Development Goals हैं और उन तक अचीव करना है to have a better globe across the globe. And ISET aligned all its initiative with Government of India visions with Skill India Mission, Startup India Mission, and Digital India Missions. Next. And coming to the ISET next. Coming to the ISET overall vision vertical, so we have 5-6 major verticals. So one, the foremost is the professional institutions, where we have 5 private universities. Then skill development, we are working with the central government, state governments, and the corporates for the skill development programs. Then we are also working with the apprenticeship. Our apprenticeship is a huge buzzword right now, and youth चूँकि बहुत सारे students यहाँ बैठे हुए हैं, so आपको मतलब apprenticeship आपके लिए पहली जो opportunities हो सकती है, जहाँ पर आप industry के साथ जुड़ के अपना पहला जो corporate life का experience है और वो आप gain कर सकते हैं, और हम हीरो के साथ भी apprenticeship कर रहे हैं. And so then preschools we have, then e-governance services, financial inclusion, then online learning. So we have an online learning platform. Next. And then we have a publication unit also. And just to cover in brief, we are the NSDC partner and Ministry of Skill Development. Then all across ministry we are implementing these programs. Next. So coming to the ISET presence, this is one of the USP of ISET. Sir, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ISET started भोपाल में हुआ था, but we are global in our presence. So we have a pan-India operations. We have a head office in Bhopal, national office in Delhi. Then we have 20 state offices. So we have a state office recently developed state office in Guwahati, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mangalore, and these are the locations. So recently we have covered the pan-India geographies. Then we have a 100+ company-owned training centers. So we have a 35 Pradhan Mantri Kaushal Kendra, and then we have other regional training centers, mega skills, EDU training centers. So then ISET has more than 2,500 employee strength on roll, and we have impacted, if in terms of impact,
So we have impacted the life of 5 million beneficiaries for last 4 decades, and we have trained more than 30 lakh of people as on date and provide the employment opportunities. The one major USP was ISEC with the two set up an entrepreneurial model. So we have till date set up more than 20,000 entrepreneurs who are again providing the job for 3 to 5 people in their territory. So in a way, more than 1 lakh people are getting the livelihood opportunities through ISEC network. Next. So these are the some of our accolades. Recently, ISEC case has been published in Harvard Business Review. तो जितने भी फ्रेटर्निटी है शायद आप लोगों को पता ना हो, बट आईसेक का केस आज बहुत सारे 20 स्कूल्स में एज अ केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा रहा है कि आईसेक ने कैसे एज अ सोशल एंटरप्राइज में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल मॉडल है. सो इट हैज बीन पब्लिश्ड इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एंड आईसेक केस आल्सो बीन हाइलाइटेड इन फोर्ब्स मैगजीन. सो आवर फाउंडर चेयरमैन मिस्टर संतोष चौबे इन द टॉप 12 ऑफ वाइज अवार्ड. वाइज जो अवार्ड है वो इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के का जो एजुकेशन स्ट्रीम में है. तो कतर फाउंडेशन वाइज अवार्ड देता है. वी वर द टॉप 12 पार्टनर. इवन इफ वी आल्सो एक्नॉलेज आईसेक का नेक्स्ट. दीस आर सम ऑफ द रिकॉग्निशन. नेक्स्ट कर दीजिए. कुछ एक स्लाइड्स हैं जो अवार्ड्स को हाईलाइट कर रही हैं. जस्ट अब्दुल कलाम साहब ने 2 बार आईसेक चेयरमैन सर को एक्नॉलेज किया है फॉर आईटी इनोवेशन और डिफरेंट उनके जो इनिशिएटिव्स रहे हैं. नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी हमें 2 फोरम्स का अवार्ड किया है. नेक्स्ट these are some of the our international events also. Next. So these are the world skill competition. We have a team has participated in Abu Dhabi and Kazan also for world skill competition. This is our flagship university, Rabindranath Tagore University in Rajasthan district, 10 km from this campus only. And it is the unique means proposition we have. It is the top 200 university as per NIRF ranking and as per the NAAC accreditation. It is the only private university in MP which has both these parameters. And we have all the facilities. Next, if you can just showcase some of the glimpses of the facility. Next. These are the some facilities in R&D available, so research driven. Then there is a Atal Incubation Center. There are 20 Center of Excellence, 50-acre campus. Next. With the vision of and the experience of running 5 universities, we are means aspiring this scope global universities to be a model university in a skill ecosystem. And with your help with the Hero Center of Excellence for the automotive sectors, it definitely will get a boost for skill training development programs. Next. So there is some R&D infrastructure. I will showcase some. I will request just आप एक बार slide go through कर दीजिए सर. कुछ 10-15 slides हैं. I will not talk. So there is a AIC incubation center. जस्ट सर एक सर को बताना चाहूँगा यहाँ पर. तो हमारी RNTU विश्वविद्यालय में सर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी है और स्टूडेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे होंगे, सब लोगों को बहुत सारी न्यू वाइब्स को पता चल रहा होगा, बिजनेस कैसे डेवलप हो रहे हैं, पिचेस कैसे हो रही है, फंडिंग कैसे मिल रही है. सो प्लीज विजिट RNTU में AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है और वहाँ पे 68 स्टार्टअप्स हैं. ये RNTU के स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर 68 स्टार्टअप अभी तक इंक्यूबेटेड हुए हैं और उनकी अगर आप मार्केट वैल्यू बोलेंगे तो वो 80 करोड़ के आसपास है. सो हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और उनका अगर आपके पास सॉल्यूशंस है तो आप स्टूडेंट के पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज हैं. हम सब डेली रूटीन में इतना ज्यादा हैं और आपके पास नए आइडियाज आते हैं उनको जरूर आप शेयर करें. नेक्स्ट AIC R&D की फैसिलिटी. नेक्स्ट और जो आपने यहाँ पे हीरो मोटर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है R&D में सर बॉश के साथ हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, डाइकिन के साथ एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ है, टाटा मोटर्स के साथ भी एक एकेडमी फॉर ऑटोमोटिव्स R&D में सेटअप की गई है. उसके अलावा 20 और स्किल एकेडमी वहाँ पे बनी हुई है. बट यहाँ पर चूंकि इसको ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी आ रही है तो यहाँ पर एक फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ पर हम इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं. सो वी आर डेफिनेटली इन डिस्कशन विद लास्ट वीक मीडिया एंटरटेनमेंट SSC की विजिट की और उनके साथ एक AVGC का बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेटअप करने जा रहे हैं. तो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप जो NEP भी बोलता है कि NEP भी जो बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि आप जो रेगुलर अपनी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आप एक स्किल मैंडेटरी है. तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि जहां पर आप
आप भले वो आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, उसके साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के जो रियल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, चाहे वो ऑटोमोटिव का हो, एडीसी का हो या एनी अदर सेक्टर्स का हो, उसमें जुड़ के इंडस्ट्री की जो रियल डिमांड आ रही है उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और नेशन को एक हम कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये बड़ा आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा इस सेंटर्स का। नेक्स्ट So उसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं। I will just if you can go through the slide or I will stop my discussion here because ISEC network में और भी चीजें हैं but to save time so मैं just वहाँ पे presentation को I will just आप presentation कर लीजिए। 2 मिनट में summarize करना चाहूँगा कि ISEC ग्रुप ने क्योंकि 5 यूनिवर्सिटी हम कर रहे हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, सो वी नो कि स्किल की बहुत ह्यूज डिमांड है और जहाँ तक हम एनुअली पेड मॉडल में स्पॉन्सर्ड मोड में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को एनुअली ट्रेन करते हैं और एक बहुत ही अच्छे स्टेप्स है जहाँ पर ऑटोमोटिव डेफिनेटली जहाँ पर जो यूजुअल हमारे पास अभी जैसे हीरो मोटर का है, जो 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर सेगमेंट में ई बाइक्स जहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूज डिमांड आ रही है और फ्यूचर ही वो है। अभी तो जो गडकरी साहब ने हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी बोला हुआ है तो और सारी डिमांड है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर विल बी द हमेशा वो फोरफ्रंट में रहेगा, उसकी हमेशा डिमांड इतनी रहेगी जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सो आई विल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप इस फैसिलिटीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में उनको बताएं कि इस टाइप की ट्रेनिंग यहाँ पे है, इस टाइप का सेंटर फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है जहाँ पर आप हीरो के साथ में चीजें कर सकते हैं। इन वेरी सून हम हीरो के साथ में, मारुति के साथ में और भी इंडस्ट्री के साथ में जो रियल्टर में जो अप्रेंटिसशिप है, इंडस्ट्री एम्बेडेड प्रोग्राम है जो 3 ईयर 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। सो सर पूरी लीडरशिप टीम को बहुत बहुत बधाई, वाइस चांसलर साहब को, राघव साहब को और पूरी आपकी टीम को ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पैदा किया। हमें आगे की फ्यूचर की धारणा को जो चेयरमैन सर हमेशा बोलते हैं कि आईसेक हमेशा उसको लीड करता रहा है, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। का सम्मान और स्वागत करें। एक मैनेजर भोपाल नवीन जी मिस्टर नवीन हैं यहाँ, तो वो आगे आए प्लीज। और माथुर साहब Thank you, sir. And thank you, Abhishek Gupta, sir, for explaining and acknowledging the ISEC group. And as you shared that, I think students might have noted that sir has shared that we are giving employment to directly or indirectly through centers or directly to 5 lakh people. So this is a very good point from students' point of view, from the point of employment. So please acknowledge this group by your claps. Now it's turn to the other person who is going to join us virtually today, and this is an address by Arindam Lari, CEO, ASDC. So I will request the team to please connect us virtually to Mr. Arindam Lari. You are curious to know because we are going to have all the senior panel who are going to discuss with you today in this hall about this Center of Excellence. You all can note down some points during their presentation and then can discuss upon it. The initial decade was spent in manufacturing sector, followed by 2 decades of experience across all domains of education and training. He started his career with Maruti Udyog, received global exposure at Honeywell Industries, USA, and had an entrepreneurship as director and co-founder at Career Launcher India.
His last assignment was with Education Division of HT Media Limited, and he also is currently on the advisory board for startups, educational institutions, and policy review committees of state and central government ministries. Mr. Lari has done his bachelor's in mechanical engineering from Jadavpur University and completed his postgraduate diploma in marketing and operations from IIM Lucknow. So this was the brief about the guest who is going to join us shortly. So due to some glitches, we are not able to connect him right away. So Priyanka, we can't hear anything on this one. is there? Is the sound there? Sir, understand, but the IT guy of the team is working on it. We haven't. It is okay. It is okay. Ganesh, बोल दो जी now it is okay. You are audible, sir. Okay. Can I start? Yes. Yes, sir. Yes. Hi, good morning to you all, for all the honorable guests on the dais. It is indeed a great pleasure to be part of this ceremony, although from a distance, because of another pre-scheduled event here in Delhi. But it is technology today actually makes it possible that you can still be part of it even if you are not there physically. It's the second best option, but it's still a good option in today's context. We've been extremely excited about this partnership over the last more than a year now with Hero MotoCorp in terms of setting up the skill development centers to train and engage in meaningful livelihood for youngsters who want to pick up a career in this industry, automotive industry, two-wheeler industry specific. And this is very, very exciting for us that we are able to bring the best of the learning material, the best of the facility, the best of the handholding and the support from the leader in the two-wheeler segment, not only in India but across the globe, to be able to provide this kind of an education opportunity, training opportunity in that city. So today, Bhopal gets added to that map. We already have more than 15 different locations where this kind of centers are already available, and the students are already benefiting hugely from the support of the knowledge, expertise, skills that the Hero team brings together. I'm extremely happy to note that the entire, Hero leadership team from the central organization as well as the regional, zonal organization is there as part of this event today, and this gives me a great comfort that Bhopal will have the best skill training center for two-wheeler service technicians in the latest technology for the bikes. And this is what I think is very important. I'm also very happy to note that Scope has been a partner of choice for us. We are extremely happy that they came forward and they have been able to set up the necessary infrastructure and the necessary ground support that is required to set up a center like this. And we hope that the best of the training facility
on the training gold programs that we offer through SCOPE at Bhopal. Thank you very much, and I wish all the best to the center at Bhopal. And I personally would love to visit this center in the near future. Thank you very much. To invite another guest on the dais, from the dais, Mr. Manish Mishra, who is Zonal Service Head Central Zone, for his address. Please welcome him. Thank you, Dr. Monica, and it's indeed great pleasure to be the part of such a good initiative because skill and learning ये जो ऐसी चीज़ है ना जो आप कम्युनिटी को कहीं पे आगे लेके जाते हो। और मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसके पहले मैं बधाई देना चाहूँगा भूषण साहब को, राघव साहब को एंड द एंटायर स्कोप इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अप दिस फैंटास्टिक सेटअप। मैं जब आपके सेटअप को विजिट कर रहा था तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं किसी अपनी डीलर की वर्कशॉप में विजिट कर रहा हूँ। और मैं वेलकम करना चाहूँगा एंटायर माई कलीग फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प, द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट नो द नेम्स बट एंड सबसे ज़्यादा मैं वेलकम करना चाहूँगा वो जो स्टूडेंट्स जो बीच में बैठे हो, पीछे बैठे में वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो थोड़ा सा बदमाश किस्म के होते हैं और ये स्किल होने के लिए so I will just try to tell you something different from skill, but you will relate it somewhere with skill also. क्यों स्किल सेंटर क्यों चाहिए हमको? क्योंकि आज अगर हम देखें तो हम दो किस्म के गैप हैं आज। एक गैप जो है वो स्किल का है और दूसरा गैप जो है वो नंबर्स का है। हम नंबर्स के गैप की बात नहीं करते, हम स्किल की गैप की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों फिल करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स का गैप बताऊं तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नाउ ग्लोबली। हम जो मिला के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर सब मिला के जो बेचते हैं, नाउ इंडिया द थर्ड बिगेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। थोड़ा सा चुप हो जाएंगे भाई साहब, थोड़ी देर के लिए 7.1% कंट्रीब्यूशन हम जीडीपी को करते हैं। मतलब उस किस्म का हमारा मतलब इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड इफ यू लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 43% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर हम देखें तो मैन पावर का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज मैं बात करता हूँ तो मेरे को ना स्किलफुल नहीं मिल पाते हैं। स्किलफुल है कि जो मेरे को कल शायद मैं काम कराना है उनसे तैयार हो जाऊँ। आज अगर स्कोप यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर अगर हम वो गैप को कंप्लीट कर देते हैं तो ये इंडस्ट्री को इंडिया में हम कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। और आप इसको सिर्फ डीलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये कहीं मैन्युफैक्चरिंग में और पड़ा है। आप कभी पीथमपुर जाइए, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे नज़दीक में मंडीदीप है, वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सो दिस स्किल सिंपल आपको कहीं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लिटरली कहीं भी जॉब दे सकता है। So it is not very specific to dealership or dealership operation. It is about making a skillful resource. So मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं जब भी भोपाल आता हूँ मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरा होम टाउन सागर है। एंड आई डिड मैं मोनिका जी को मेरी शायद लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं मिल पाया तो मैं आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम जबलपुर। इट वॉज उस टाइम में बोलते थे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, डन स्कूलिंग फ्रॉम सागर। सो आप लोगों के बीच का हूँ, सागर का हूँ, बुंदेलखंड का हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. So one thing which is to be noted that you can get an entry laterally, directly, or horizontally, or vertically also by doing such skills. Now, moving ahead, I would like to invite another speaker today, Mr. Sriram Sasikumar, Area Manager, Customer Experience, Madhya Pradesh, for his address. Please welcome him.
respected dignitary. I'm not taking much time on this particularly, but really happy to be part of this ISEC and Scope Engineering College to associate with this through ASDC for the particular course, where from first day to 90th day of the course, we will be supporting technically and in terms of the placement at the dealerships, because we have in MP almost 500 dealerships where almost 3,000 technicians are working and other manpower also. The placement part, we will be placing a key role in this course to complete, and the practical sessions also, because as you might be knowing that this 90 days course, 63 or 64 days are in the theoretical session with according to the practical what we have in the workshop being set up in this college, and another 14 days we will be having a orientation type of program where these people will go to the real field of the workshop, and hands-on working will be there with the real the vehicles. So there also we will be supporting in terms of giving the training and the development. So development will not only complete in the training part, so it will continue after the training part also. So that's what from Hero MotoCorp. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Now it's time to hear the very senior person, Mr. Rakesh Nagpal, GM Services, HMCL. Sir himself is an bundle of experience who is going to unfold his journey before you. Please welcome him. नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजय भूषण जो ईसी हैं, देन डॉक्टर देवेंद्र डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मोनिका, माय कलीग्स मनीष, शशि, नवीन एंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर इंक्लूडिंग ASDC टीम। सो बहुत खुशी हो रही है, बहुत जैसे मनीष जी ने भी कहा, बहुत एक गर्व का मौका है। मतलब आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड पैरेलली अगर हम स्किल का देखें तो स्किल के अंदर आज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आज हम बात करते हैं कि भारत देश जो नया भारत है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत अपग्रेडेशन है, काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग है ऐसी मैन पावर का उपलब्ध होना, अवेलेबल होना जो इस चीज़ को सही तरीके से कर सके, आगे लेके जा सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा, अभी मैं किसी फोरम में सुन रहा था, जब मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर कलसी को, हु इज़ द चेयरमैन फॉर NCVT। तो पीछे किसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी सेड दैट आज कोई भी आदमी अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता है तो ये बोलता है कि IIT का है, IIM का है। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब वो बोले कि ITI पास आउट है या किसी स्किल सेंटर से पास आउट है। आई रिमेंबर दैट। और आज मतलब पीपल शुड एस्पायर, एक आम इंसान को एस्पायर करना चाहिए कि मेरे को ऐसा फैमिली मेंबर अपने घर के लिए मिले। तो मी मिस्टर दासगुप्ता, एवरीबडी, वी ऑल्सो एस्पायर, वी हैव स्टार्टेड एस्पायरिंग फॉर दैट कैंडिडेट जो कि यहाँ से बाहर आए। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी है जो हमने शुरू की पिछले 1.5-2 साल से। एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू मिस्टर दासगुप्ता बिकॉज द काइंड ऑफ ड्राइव ही हैज़, मतलब किस तरीके से आज हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आई वॉज मोर देन इम्प्रेस्ड व्हेन आई सॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इज़ द बेंचमार्क। मैंने अभी तक नहीं देखा, आई ओपनली एक्नॉलेज, मैंने बहुत दुनिया देखी है, US, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गया हूँ मैं। ऑन स्किल फ्रंट इंडिया के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और उसको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार आदमी को एक गलतफहमी होती है, एक मन में एक मिथ होता है, एक धारणा होती है कि ये कौन सा IIM के या IIT के बच्चे हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल एक एवरेज काम भी चल जाएगा, बट द काइंड ऑफ एम्बियंस, द काइंड ऑफ इंफ्रा विच Dr. Sir was sharing with us and we were witness to that. I think my heartiest compliments to the entire team who has made it happen.
Other is that what we have done at our end, our team has done in terms of regional conversion. इस जो करिकुलम है 63 days का with follow up for 14 days, वो क्यों हमने इसको ऐसा किया कि अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ तो बार बार बोलते हैं यहाँ ज्ञान बहुत है, भारत में थ्योरी बहुत है, लेकिन जब किसी को प्रैक्टिकल के लिए कहो, आज ही सुबह हमारी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी मॉर्निंग सेशन में बिफोर वी स्टार्टेड दिस कॉन्फ्रेंस, कि आज अगर हम अपने बच्चे को या किसी को भी कहें यार ये छोटी सी प्रॉब्लम है, तो पहले खुद ठीक कर लिया करते थे, अभी वो फ़ोन करके किसी को बुलाते हैं। कोई बुराई नहीं है, आज अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहीं भी अपनी स्किल को कम नहीं होने देना चाहिए। मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ है कि हमें अगर आता है तो हम उस पर कमांड कर सकते हैं। इफ़ आई नो समथिंग आई कैन से समबडी कि आप इस गाड़ी को सही तरीके से, जो नवीन जी करते हैं या और हमारे पार्टनर करते हैं, मुझे मतलब ही सच अ नॉलेजेबल गाय, अगर किसी को खुद समझ ले तभी वो किसी को गाइड कर सकता है। तो अपने अंदर भी ये चीज़ हमें लानी है, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट स्किल्स कैन बी इम्पार्टेड, यू कांट इम्पार्ट एटीट्यूड टू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, लेकिन आप उसको गुण या स्किल सिखा सकते हो। तो ये एक मंदिर है, ये टेम्पल है जिसमें हम ये काम करने जा रहे हैं, और मेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you so much, sir, for making it so pious for all of us. Now I would like to invite Mr. Dev Kumar Dasgupta, DGM Service HMCL, who has been visiting us for quite a long time, and we are really grateful and thankful to him for joining us. Please welcome him. सारे सीनियर्स ऑफ स्कोप यूनिवर्सिटीज़ सबको प्रणाम, और अपना सीखना हीरो का कलीग्स है उनसे भी सादर संभाषण, और सारे हमारा जो बच्चे बैठे हैं। सो फॉर मी इट इज़ ए प्राउड मोमेंट, मतलब इसलिए लगता है कि भाई आज ये दिन का 6 महीना पहले शुरू हुआ था। जो होता है ना, अपना घर जब बनाते हैं तो एक एक ईंट आप कहीं से लाते हो, फिर ईंट जोड़ते हो, फिर वो बनता है, फिर घर में गृह प्रवेश होता है। तो आज ऐसे दिन है जहाँ पे हमने गृह प्रवेश किए, और 90% क्रेडिट गोज टू द एरिया ऑफ टीम, बिकॉज अगर नवीन और शशि नहीं होते तो मैं यहाँ से नहीं संभव। तो स्पेशल थैंक्स। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, जो ये थॉट्स कैसे है, बिकॉज इट मे हेल्प टू स्कोप यूनिवर्सिटी ऑल्सो। जब BS6 आया है ना, तो हमारा आई वॉज द जोनल सर्विस ईस्ट, एंड पहले मैं सेंट्रल जोन का भी जोनल सर्विस हेड था, उसका बाद में ईस्ट में गया था। तो जब भी कोई भी सीनियर लेवल में बात हुआ था तो 2 चैलेंज हमारा सामने सबसे स्ट्रॉन्ग था। नंबर 1 चैलेंज है प्रोडक्ट, जो कि नया BS6 हो रहा है, कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन, टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज है जो मैन पावर हमारा डीलरशिप में है, उसका ट्रेनिंग एंड उसका सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन आज का दिन में कोई भी टू व्हीलर डीलर अगर कोई अपॉइंटमेंट करता है तो डीलर ओनर को बोल देता है कि आप भाई 4 मैकेनिक्स लाओ, लेकिन वो कहाँ से लाया, किस प्रोफाइल का लाया, उसका कोई गाइडेंस कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं दे पाता। तो ये जो थॉट्स निकल के आया कि भाई हमारा प्रोडक्ट का ऊपर तो हमारा R&D है, वो काम करेंगे, लेकिन हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं, नई स्किल्स का ऊपर। सो ये कंटेंट जब हमने बनाया तो मोर देन 100 वर्क्स मैनेजर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर का साथ हम बैठे और ऑलमोस्ट 500 कस्टमर्स से हम इंटरेक्ट किए, और हम ये जानने का कोशिश किया है जो वर्कशॉप का टीम है, जो तुमको किस तरह का सा आदमी चाहिए, जो टेक्नीशियन तुम मतलब लेते हो, टेक्निकल पर्सन, तो उसको कितना का बेसिक स्किल चाहिए। तो ये निकल के आया जो वर्कशॉप में 70% काम होता है वो जेनेरिक्स काम होता है, मतलब जनरल सर्विस होता है, और 20% काम होता है जो कि मतलब नॉर्मल इंजन जॉब और अदर्स, और 10% जो एक्सीडेंटल जॉब होता है। सो मेन नीड जो होता है इंडस्ट्री का चाहिए वो है 70% है, एक कस्टमर गाड़ी परचेस किया, नया गाड़ी लेके आया, उसको एक सर्विसिंग करना है, उसको मिसगाइड नहीं करना है, उसको बारे में बताना है, सही उसको करना है। सो दैट इज अ नीड। Based on this content developed and almost 4 months it took to content, and उसमें हमारा कोर टीम बना, उसने सबने इनपुट दिया है, और फिर उसको धीरे धीरे कंटेंट को डेवलप किया है। और अगर आप कंटेंट को देखेंगे हमारा
उसमें 70-30 है, मतलब 65% अबाव जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है एंड 30% जो है थियोरिटिकल अप्रोच है, क्योंकि कुछ थियोरिटिकल रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीबीटी में अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो तो कुछ थियोरी भी आपको दिखाना पड़ेगा. बट दिस इज द ऑन थिंग्स एंड दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओजीटी केम, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन द ट्रेनर. जो हमारा ट्रेनर्स है वो हमारा लर्निंग सेंटर्स में ट्रेनिंग लेके आया है, फिर इधर आया. तो ये कंप्लीटली इकोसिस्टम्स को डेवलप करने के बाद फिर दिस इज द 13 सेंटर वी आर इनोवेटिंग 1-3 एंड लास्ट 2 years में, एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू इनोवेट अनदर 2. तो 15 एंड मेरे को ये सबसे बड़ा खुशी होता है जो अभी तक से हीरो नेटवर्क में कम से कम 150 प्लस मैन पावर प्लेसमेंट हुआ है. एंड बाकी टीवीएस में, होंडा में और बाकी जगह में गया. मैं हीरो का ही सिर्फ ले रहा हूँ क्योंकि वो इट इज़ ए इकोसिस्टम एक डेवलप हुआ है. साउथ में हमने ये शुरू किया है और साउथ में ये अच्छा ये हो गया था. आज अगर साउथ में कोई डीलर का पास कोई एम्प्लॉयमेंट की आता है तो सबसे पहले डीलर्स SSPRT बोलता है जो कोई बात नहीं है, आप पहले ये फलाना सेंटर में जाओ, उसमें 3 महीने का ट्रेनिंग लेके आप आ जाओ, फिर आपको ले लेते. ये कल्चरल डेवलपमेंट साउथ में हो चुका है. सो मेरा रिक्वेस्ट है शशि को और पूरा भोपाल टीम को, प्लीज मेक दिस काइंड ऑफ कल्चर हेयर. जो डीलरशिप में कोई जाए तो उसको इसी तरह का रूट करा दो. और उसके लिए हमने बेनिफिट भी रखा है, डीलर्स को बेसिक ट्रेन टेक्नीशियन उसको सर्टिफाइड हो जाएंगे ताकि उसको दोबारा भोपाल में ट्रेनिंग सेंटर में भेजने का जो एक्सपेंसेस और टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज द फीचर्स हैज बीन डेवलप्ड सच अ वे. और जो स्टूडेंट्स जो है जो इस कोर्स के लिए खास करके मैं उनके लिए 2 शब्द बताऊंगा. देखो लाइफ में ना 3 फेज होता है, एक लर्निंग, अर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग. तो आप लोग का जो फेज है ना लर्निंग फेज है. तो पहले जो है ना शुरुआत में ही CTC का पीछे मत जाओ, मतलब कितना मेरे को पैसा मिल रहा है. कम से कम अपना स्किल को डेवलप कर लो, थोड़ा सा कष्ट सह लो. उसका बाद जब आपका स्किल हो जाएगा, मार्केट में आपका वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, तब आप अच्छा सैलरी के लिए चला जाना छोड़ के. जो नॉर्मल ट्रेंड हमने देखा है, जो कहीं अगर 7,000 दे रहा है, कहीं अगर 9,000 दे रहा है, कहीं अगर 12,000 दे रहा है, तो तुरंत छोड़ के उसमें चला जाना. उससे क्या होगा ना, आपका इकोसिस्टम जो आपका अंदर का जो स्किल्स है इनकम्प्लीट होगा. तो शुरू में ना आपका जहाँ पे भी प्लेसमेंट लगे, आप ये मान के चलना जो ये सैलरी नहीं मिल रहा है, मेरा बस डेली खर्चा निकल रहा है और मेरे को ना अभी 1-2 साल उसमें जट के रहना है और डट के रह के उसको सीख लेना है. लाइक ऐसे एग्जाम्पल, मैं स्टार्टेड माई करियर विद ऑस्ट्रेलिया में 800 रुपीज. सो एंड इन द मंथ ऑफ मई जून में लेलैंड में, तमिलनाडु में, इन्नोर फैक्ट्री में फर्स्ट ट्रेनिंग क्या था, जो चेसिस में नट बोल्ट काउंट करके आ जाओ. मेरा ट्रेनर ने बोला है जो गो टू द वार्ड, उसमें चेसिस खड़ा हुआ है, आपने कितना नट बोल्ट है फ्रंट एक्सेल से उसमें काउंट करके आके बताओ. जस्ट इमेजिन ओपन एंड चेन्नई जैसे धूप में. तो मेरे को लगा यार मैं इंजीनियरिंग करके आया है, ये मेरे को तो मतलब हेल्पर मतलब क्या है बना दिया है. 50% of our GT decided to leave Australia. Then he told in the evening that first of all you forget your legacy that you are engineer. You please feel that you have to know the product first in your own feelings, in your own hand. Then आप धीरे धीरे, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पास फीडबैक है, जब OGT में जाता है तो बहुत सारे लड़का जो है, क्योंकि हमने ये सीख के आया तो हाथ ऐसे करके खड़ा रहता है, उससे आपको फायदा नहीं होगा. हाथ गंदा करो, जितना हाथ गंदा करोगे उतना आप खुद सीखोगे, वैल्यू होगा. बाद में आप अर्निंग कर लेना, फिर मेरा एज में जाएगा ना तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर देना, जैसे मैं अभी करता हूँ. So that's all. I think thank you very much for this excellent center. जैसे नागपाल जी बताया, this is the definitely I should acknowledge and recognize. This is the best infrastructure so far we have developed and thanks to the entire scope team. हमने जितना मांगा है आपसे उससे कई गुना ज़्यादा दिया. Thanks a lot. Thank you. Now it's time to hear the person who was there behind the original setup of this center which has come up before us today. I would humbly
request Dr. D.S. Raghav sir, Pro Vice Chancellor and Director Scope Group of Institutions. Please welcome. आज के समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण और शिक्षक, शिक्षार्थी, मीडिया के लोग, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं ज्ञान बहुत है, विज्ञान कम है। कहीं ना कहीं ज्ञान बहुत है, विज्ञान कम है, सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन हम लोग खुद से पहचान बहुत कम है। तो इस पूरे COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एस्टेब्लिशमेंट में हमारे मेन हीरो जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने दिन और रात, सुबह से शाम इस छोटे से स्पान में एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो सबसे पहले उनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर अनुराग को स्टेज से वो सामने आए और अपने जो 3-4 टीम के लोग हैं उनको भी बुलाएं, ताकि सबको पता चले कि इस यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट में इन लोगों का कितना योगदान है। ये प्लीज आगे आइए। These are the persons who helped us to आइए, जल्दी आइए। तुम लोगों को इतना तेजी से वहाँ काम किया, इतनी देरी से आने में टाइम लग रहा है, जल्दी आओ। ये मेरी तरफ से अनुराग इज लीडर। उस समय से जहां की रामायण ने ये सिद्ध किया कि टीम कितना महत्वपूर्ण होती है। भगवान राम की वानर सेना को देख के रावण ने भी ये कहा घमंड में कि ये छोटी सी और छोटे से लोग क्या कर पाएंगे अपना, और छोटे भाई को भेज दिया, बोले इनसे तो आप ही निपट लेना। लेकिन मित्रों, मैं ये कहता हूँ और समझता भी हूँ, और ये रामायण सिद्ध करती है कि जब टीम पूरी तरह एक सूत्र में बंधी हो तो झाड़ू की सीखों की तरह इतनी अच्छी घर की सफाई करती है कि आगंतुक अतिथि भी ये देखकर भाव विभोर होता है, वाह, घर वालों ने कितना अच्छा काम किया है, कितना आतिथ्य में स्वागत किया है। तो ये हमारे सभी अतिथि जिन्होंने आपके लिए ये शब्द कहे कि हीरो मोटर कॉर्प्स ने आज स्कोप कैंपस में एक COE एस्टेब्लिश करके, अनुबंध करके STC के साथ ये काम किया है, बहुत अच्छा अंजाम दिया है स्कोप कैंपस के सभी लोगों ने। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और इन लोगों के लिए भी खुशी की बात है कि इनकी जो भी इच्छा और अपेक्षाएं हमारे इस ग्रुप से हैं उस पर हम खरे उतरेंगे। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने करीब 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ इसी कैंपस में खड़े किए हैं, जो हमारे खुद के खर्चे पर हुए हैं, और हमने उसमें भी इसी तरह किसी भी फिनेंस की या किसी भी इक्विपमेंट की कोई कोताही या कमी नहीं छोड़ी। वो आपको विजिट कराया। हमारा मानना है कि ये जब स्किल यूनिवर्सिटी अपने पूरे स्वभाव पर होगी, पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, तब देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इसे विजिट करने के लिए इच्छुक होंगे, ये मेरा मानना है। मित्रों, हम लोग सभी अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें ये ज्ञान दिया है, ये विज्ञान दिया है, और सोचने के लिए एक बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से ऐसा साहित्य दिया है जिसको पढ़ करके हम निश्चित रूप से अपना जीवन तो संवार ही सकते हैं, बल्कि हम समाज का भी अधिक से अधिक हित कर सकते हैं। मुझे एक वाकया रामचरितमानस से याद आता है कि जब वानर सेना
अपने जीत के जश्न के बाद बाहर वहां से आ रही थी श्रीलंका से, तो लंका से आने के बाद भगवान राम ने सोचा, सभी पढ़ते हैं तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। भगवान राम ने कहा कि रास्ते में 14 साल के वनवास में बहुत सारे लोग मिले और इतने सारे लोग मिले, अब मैं उनका कैसे आभार व्यक्त करूं। तो हृदय से तो वो उन्होंने किया ही, लेकिन कुछ ऐसे मुख्य लोग भी थे जिनके साथ मिलके उनकी जो है अविस्मरणीय स्मृतियां बनी हुई थी, तो उनसे तो मिलते जाए। तो इस समय वो रास्ते में मिलते हुए नल, नील और उनको नदी से पार किया था नाविक केवट, उन सब से मिलते हुए वो आ रहे थे। तभी देखिए वो उस समय डायरी नहीं होती थी, उस समय कोई पीएस नहीं होता था जो कि रिमाइंडर दिलाए। मैं ये बात गर्व के साथ कहता हूँ कि आपका दिमाग ही आपका पीएस है, आपका दिमाग ही आपका मालिक और आपका दिमाग ही सब कुछ है। यदि आप आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं तो सब कुछ आपके साथ संजोहित रहता है। तो भगवान राम जब आ रहे थे उधर, पता चला, उनके क्लिक हुआ कि भरत अयोध्या में बैठे हैं और भरत ने ये शपथ खाई थी कि 14 वर्ष ठीक पूरे होने के बाद यदि भगवान राम नहीं आए अयोध्या में तो उसी दिन मेरे जीवन का वो अंतिम दिन होगा, अंतिम क्षण होगा। और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं पुष्पक विमान से जाऊंगा और पहुंचूंगा और 14 वर्ष हुए इधर अयोध्या में भरत अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भरत को लगा कि अब नहीं आएंगे राम, 14 साल पूरे हो गए। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं 14 साल से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता भगवान राम के बिना। तो मित्रों, कहानी कहती है या रामायण कहती है कि भगवान राम के दिमाग में बात आई उसी समय, हनुमान से उन्होंने जो अपेक्षा थी वो बात ट्रांसफर की और हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने उस अनर्थ को होने से बचा दिया। ऐसे ही हनुमान हर संस्था में होते हैं जो आगे बढ़ के चढ़ के काम करते हैं और उस संस्था को आगे लेके जाते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर हनुमान जी कोई इसके लिए होते या कोई हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले होते तो शायद लक्ष्मण की भी जान नहीं बचा पाते, संस्था तो दूर की बात है। तो इसलिए हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता कहती है कि हमारे पास स्किल का अथाह भंडार है, स्किल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी मानसिकता की। मानसिकता क्या है? चूंकि छात्र बैठे हैं इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ से पढ़ने के बाद घर जाते हैं, जिसने बीए की, बीएससी की, इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा किया, कुछ भी किया, एमबीए किया, तो घर के काम में हाथ बटाने से हमें ऐसा लगता है कि ये तो सब छोटा मोटा काम है। मुझे एक वाकया याद आता है इसी दौरान कि एक बार मैं 10th 11th में पढ़ रहा था, तो स्कूल से आते थे 7-8 किलोमीटर साइकिल चलाते, तो आए घर पर पता चला कि उस समय खेतों में कुएं थे और उससे पानी निकलता था। आप लोगों को नहीं पता है, आजकल तो समरसीबल पंप चलती है। कुएं में नीचे जाके मोटर डाली जाती थी, कुआं खुलता था 5x5 का या 6x6 का, और वो 100-150 फीट नीचे पानी मिलता था। मोटर डाली जाती थी, उसमें पाइप लगता था और इस तरह से पता चलता था और पानी निकलता था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा आज कोई मजदूर नहीं मिल पाया है और मोटर में नीचे काम होना है, कुछ एक व्यक्ति की मदद लगेगी। हमने कहा 100-150 फीट का कुआं बड़ा गहरा, और उस उम्र में थोड़ी सी झिझक भी होती है, गए अंदर और क्या हुआ, तो कैसे उतर तो जाएंगे चलो रस्सी के सहारे, लेकिन चढ़ेंगे कैसे? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, मुझे आज भी आती है कि जो गहराई में उतर गया वो चढ़ना सीख जाएगा, उसे चढ़ना आ जाएगा। तो आप अपने जीवन की गहराई में उतरो, चढ़ तो खुद ब खुद जाओगे। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आज जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों आई? इसलिए आई कि हमने ये छोटा छोटा जो घर गृहस्थी में हाथ बटाना है छोड़ दिया है। घर में कोई काम हो रहा होता है, हम नहीं खड़े होते हैं। आज भी हम गाड़ी लेकर के किसी वर्कशॉप पे जाते हैं
तो हम उसके ऑफिस में नहीं बैठते, गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। बोले भाई ये जो आज फॉल्ट आया है इस गाड़ी में, वो कल को कहीं रास्ते में आ गया तो 70-80% भी हमने ठीक कर लिया या पूरा ठीक कर लिया तो घर तक आ जाएंगे। लोग कहते हैं साहब आप तो बैठो एसी में, अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हमने ठीक है, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चलेगा ठीक किया तुमने या खराब क्या हुआ। तो हमारी मानसिकता बड़ी कंफर्ट जोन में चली गई है। मैं कहता हूँ आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, उस टेक्नोलॉजी के साथ यदि आप नहीं चलते हैं प्रायोगिक रूप से तो पिछड़ जाओगे और केवल पंगु बनकर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी रात में लाइट चली गई है, रात में मिस्त्री नहीं मिलेगा, आपको एमसीबी डाउन और अप करना आना चाहिए। अगर आपकी लाइट चली गई है, कहीं से फ्यूज उड़ गया है किसी एक जगह से, तो आपको आना चाहिए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबको आना चाहिए। इसमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में मिस्त्री आता है वो ट्रेन कर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर मार देते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो केवल समझ पैदा करिए और ऐसी समझ यदि सीखने की आपकी आ जाएगी तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जब आप अपनी उस नॉलेज को रिफाइन करने आएंगे तो आपको आज 63 डेज का टाइम मान लीजिए एक हीरो मोटरक्रॉस के वर्कशॉप में सब कुछ सीखने के लिए लगेगा और जब आप खुद सीखे हुए थोड़ा बहुत होंगे तो वहां 20 डेज में ही सीख जाएंगे, 30 डेज में ही सीख जाएंगे, 50% समय की बचत होगी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सब कुछ पा लिया जीवन में, फिर भी एक इच्छा शेष रहती है कि अब हम सुखी और शांत होकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो सुखी और शांत होने के लिए आपको अपने वो उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाती है कि जिसे आप पाना चाहते थे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाओगे। अन्यथा लोग ताउम्र भटकते हैं, चाहे उनकी उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, और अंतिम समय तक वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल जब रहते हैं तो अंतिम सांस भी उनकी अतृप्त होकर दी जाती है। तो आपको यदि तृप्ति पानी है तो अपने जीवन की दुनिया को ऐसे चलानी है कि जहां आपके पास एक एक्वेंटेड हृदय हो, एक एक्वेंटेड दिमाग हो, एक ऐसा संतृप्त अवस्था हो, और वो तभी होगी जब आपका घर गृहस्थी ठीक चल रहा होगा। आई मीन रोटी कपड़ा और मकान ठीक चल रहा होगा। वैदिक संस्कृति के 4 शब्दों को आपने अगर पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आप उस ज्ञान से भी ओतप्रोत होंगे और छोटी जो जीवन स्तर को गुजारने के लिए सुख सुविधाएं हैं उनसे भी ओतप्रोत होंगे और आनंद ही आनंद आपके चारों तरफ होगा और आने वाले आगंतुकों को भी वो महसूस होगा और आपके ही रंग में वो भी रंग जाएंगे। ये उदाहरण अभी मैं आपको बताता हूँ कि होली के समय पर जब हुरियारे होली खेलते हैं और उस रंग में डूबे होते हैं तो 10 आए, 5 आए, 50 आए, सब उसी रंग में रंग जाते हैं। तो हमें सभी को आनंद के रंग में रंगने के लिए अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। उद्देश्य को पाने के लिए हमें अपने प्रयास करने हैं और वो प्रयास चाहे आर्थिक अचीवमेंट के हो, चाहे आपके शारीरिक अचीवमेंट के हो, चाहे मानसिक अचीवमेंट के हो, चाहे आत्मिक स्तर के विकास के लिए हो, वो प्रयास होते ही रहने चाहिए, सतत होते ही रहने चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर से वो खुशबू सुवासित होगी कि आपका माहौल चारों तरफ का भी बहुत अच्छा होगा। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बोल इसलिए रहा था, इतना मैंने टाइम देखा कि 12 बजे तक सब निपट गए। मेरी आदत तो ये है, आप सब जानते ही हैं, मैं जब बोलता हूँ तो व्यवहारिक बातें आती हैं टेक्नोलॉजी से, तो ठीक है, सब बोलते ही चलते ही है। तो आप टेक्निकली साउंड हो, ये मेरा सभी बच्चों को शुभाशीष है। और तकनीकी और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप स्वयं की और देश की सेवा करें। ऐसे हमारे गौरवपूर्ण सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक छोटे से परिवार से अपनी यात्रा शुरू की और उस यात्रा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक किसी न किसी नए रूप में लेकर के जा रहे हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में एक बार जोर से तालियां बजाते हैं। मैं एक बात कहता हूं, कई बार मेरे को समझ में आती है, लोग कहते हैं कि धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये
लोगों के बंटवारे के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसमें हमें नहीं जाना है। न कोई हिंदू है जन्म से, न मुस्लिम है। ये जन्म से यहाँ पैदा होने के बाद सब कुछ होता है। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, प्रकृति का कोई धर्म नहीं होता, पेड़ पौधों का कोई धर्म नहीं होता, पशु पक्षियों का कोई धर्म नहीं होता। तो हम क्यों अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़े? वैदिक संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है जो हमें कुछ देती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करती है। तो मित्रों, आप इसी जीवन को इसी तरह हंसी खुशी से जीते रहिए। खास तौर से हमारे देश के भविष्य, समाज के भविष्य, छात्र और छात्राएं जिनसे हमारे देश को बहुत उम्मीद है, परिवार को उम्मीद है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो निश्चित रूप से अपनी इस गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अंदर 2, 4, 6 स्किल जरूर डालेंगे, जरूर स्किल से अपने आप को सुसज्जित करेंगे, सुशोभित करेंगे, ताकि वो समाज में कुछ न कुछ सेवा के काम आए और अपने परिवार को भी ठीक से चला सकें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Now it's time for felicitation to our trainers, and for that I would like to extend my humble invitation to Mr. Dev Kumar Das Gupta, DGM Services, HMCL. Also, all the dignitaries from the dais to please join us off the dais. Big round of applause. I invite Mr. Sandeep Shah. And last but not the least, Mr. Golu Dahore. Thank you so much. So there is a memento presentation from Mr. Ganesh, ASDC, to scope. To scope group, SDSU and Scope College of Engineering. Thank you so much, Mr. Ganesh, for this acknowledgement from your side of our program flow, which is about the expression of gratitude. And I humbly would extend my gratitude towards the whole dais, the people from Hero Motocorp Limited, who have come across from the all India, from different cities, have come here and joined us despite of their, busy schedule. And also my thanks I would extend to Mr. Arindam, who also joined us virtually, and all the team from Hero Motors. Apart from that, I would extend my gratitude to the in-house people, the people behind the whole setup, the people from SGSU, the people from Scope College of Engineering and ISEC Group, and the whole Scope fraternity, and above all the students who have actually kept the patience and heard the whole conversation. I would just like to take few questions if you all have. Students, just 2 or 3 questions if you all have. So, I don't think so that everybody was so much clear, so you got everything. And then in practical you will have the questions. So with the lines, I would like to close this program that ज़िंदगी बस इतनी सी ख्वाहिश है तुझसे कि मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो. Thank you so much. So now we'll disperse.